ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਡਾਵਰ ਭੋਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਭੋਲਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਡਾਵਰ, ਵਿਕਾਸ ਡਾਵਰ, ਕਪਿਲ ਡਾਵਰ, ਡਾਕਟਰ ਕਾਵਿਆ ਭੋਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਣਿਆ, ਕਰਮਿਸ਼ਠਾ, ਰੁਦਰ ਅਬੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟਲਵੁੱਡ ਹੋਟਲ, ਮਾਲਵਾਲ ਰੋਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਭੋਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1968 ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਜੇਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ RSD ਕਾਲਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1991 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਭੋਲਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕਾਵਿਆ, ਕਰਮਨਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਿਸ਼ਠਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਾਵਿਆ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਕਰਮਨਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਿਸ਼ਠਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਭੋਲਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਭੋਲਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਦਰ ਅਬੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
बहनों से, भाइयों से, एक बार मैं कहूँगा, एक बार आप मेरे साथ में करके गुनगुनाइए। जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम। थोड़ा कोशिश कीजिएगा। गुरबाणी में आता है, राम नाम पूर्वे गयो काके संग नहीं कोई। प्यास को क्या बजा दीजिए। जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम। 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 जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम बोलो, जय जय सीताराम। सब प्यार से गाओ। दीन कहे, दीन कहे भगवान सुखी। चौराहे पे भीख मांगने वाला, सामने यही बहुत से बिल्डिंग है, एक अमीर आदमी की बिल्डिंग है। गरीब के मन में आया, अरे मैं कितना दुखी हूँ, मैं ये कितना सुखी। उसके मुख से निकल गया, दीन कहे भगवान सुखी। दीन कहे भगवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा बड़ा सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी। राजा कहे महाराजा सुखी। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे है ब्रह्मा सुखी। इंद्र कहे है ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा कहे सुख शिव को भारी। तुलसी तुलसीदास की चाल कहे, सब जग देखा है दुखियारी। राम नाम की भक्ति बिना हमने सब जग देखा दुखियारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वाहेगुरु सतनाम जी। सतनाम वाहेगुरु सतनाम जी। सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु जी। सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु जी। जय जय सीताराम बोलो जय जय सीताराम। जय सीताराम बोलो जय जय सीताराम। जय 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 जय राधे श्याम बोलो जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम बोलो जय जय राधे श्याम। जटाकटा संभ्रमं भ्रमं निलम्बनिर्झरी। विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि। जटाकटा संभ्रमं भ्रमं निलम्बनिर्झरी। विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि। किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। मंच से आप ही के इलाके के बहुत विद्वान ब्राह्मण जिनके मुखाग्नि से आप श्री गुरु पुराण जी का ये पाठ कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। आज बहुत दुख की घड़ी है। हमारे आदरणीय, अब मैं किस नाम से संबोधित करूं, बेटी को हूं तो, पुत्रवधू को हूं तो, यानी इतने नाते हैं अरुण भोला जी के। और उनका अचानक जो है संसार से चले जाना हमारे चिरंजीव करमन्य बिटिया काम्या परमिष्ठा राज भाई तरेजा जी और हमारे हर दिल अजीज चिरंजीव डॉक्टर भोला जी, जिनको रामायण में चुपाई आती है कि मिलत एक दारू सुख नहीं और बिछड़ुत एक प्राण हाली। एक ऐसा व्यक्ति जो है माथे लग जाता है, इंसान सोचता है ना जाने आज भोजन में नसीब होता है नहीं। और एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव जब संसार से जाता है, मिलत एक दारू दुख नहीं और बिछड़ुत एक प्राण हार नहीं। ऐसा लगता है मेरे प्राण चले गए। और आज ठीक वही घटना हमारे साथ घटी है। तो बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठा है और हमारे जीवन साथी इसको छोड़ करके चला जाए। सच्ची बात मैं बड़ी हिम्मत करके बोल रहा हूँ सर, बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि इतने वर्षों से जो है मेरा भी इस परिवार के साथ एक डॉक्टर राजा राम जी का जो है एक पौधा लगाया हुआ है, जिसको पूज्य माता जी ने सींचा। आज
यही पौधे जो है कुछ बड़े हो रहे हैं और आज बुजुर्गों की याद तो आती है, लेकिन ये बीच में जो घटना घट गई, पीछे पूज्य माता जी चले गए, उसके बाद जो है डॉक्टर अरुण जी का ये जाना परिवार के लिए दुखदायी है, समाज के लिए दुखदायी है। लेकिन गुरबाणी में कहा गया है, ढल्ले आए नानका सद्दे को ठीक। और ये वही भेजने वाला है, वही बुलाने वाला है, वही मारने वाला है, वही दिलाने वाला है। दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है। मैंने पिछले दिनों गीत कहा था कि दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। मुझे याद आ रहा है एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा कि जाना मैंने जननी जनक भाई और बहन को जाना, सबने जाना कि जाना मैंने जननी जनक भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना मैंने खाना पीना जाना है, दुख जाना सुख जाना अपना पराया जाना, कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है, शत्रु जाना मित्र जाना अकड़ मकड़ जाना, राजा राम संपत्ति का जाना जोखा जाना है, अरे सब कुछ जाना और खाक नहीं जाना, कर उसको ना जाना जिसके पास तू नहीं जाना। एक संत चले जा रहे थे, संतों ने एक ऐलान कर दिया, बोले दुनिया के लोग सावधान हो जाओ। बोले क्या? कहा कि जरूरी है कि एक दिन तू दरे दरबार जाएगा, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है कि एक दिन तू दरे दरबार जाएगा, तेरा इंसाफ करने को तुझे मालिक बुलाएगा, खजानत से तेरी आंखें न उसके सामने होंगी, मिसल जब कार न होगी तुझे मालिक दिखाएगा। सुनो दुनिया के लोगों, रे मनी
रहता है सिर्फ नाम, छूटेगी संपत्ति यही पर ना तेरी कब्र में तेरा रे। छूटेगी संपत्ति यही पर ना तेरी कब्र में तेरा रे। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। संतों ने कहा ध्यान देना, साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल दलान तक। साथी है मित्र गंगा के, साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल दलान तक। परिवार के सब लोग बढ़ेंगे मसान तक। परिवार के सब लोग बढ़ेंगे मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल दलान तक। परिवार के सब लोग बढ़ेंगे मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन बिन नर को अकेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा, झमेला रहेगा। जिंदगी सच्चाई है, एक किराए का घर है। मालिक मतलब एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी संतों ने बहुत अच्छी बात कही। जब तुमको आवाज देगी
तीन ही गतियां हैं, या जमीनों में कब्रें खुदेंगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हुस्न दौलत तेरी ये जवानी, ये जवानी, ये जवानी। हुस्न दौलत तेरी ये जवानी, हुस्न दौलत तेरी ये जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। हुस्न दौलत तेरी ये जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, ये जवानी है दो दिन का सपना, ये जवानी है दो दिन का सपना, ये जवानी है दो दिन का सपना। ये जवानी है दो दिन का सपना। ढूंढ ले तू कोई रास्ता अपना, ढूंढ ले तू कोई रास्ता अपना, ढूंढ ले तू कोई रास्ता अपना। सुबह को चढ़ता सूरज जो देखा, शाम होते ही ढलना पड़ेगा, शाम होते ही ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। राजा ध्यान रखना, वास्तविकता जीवन की यही है। बोले क्या? राजा सावधान हो, तेरे परदादा आए थे वो चले गए, तेरे दादा आए थे वो चले गए, तेरे पिता आए थे वो चले गए। राजा पुराने मानना, तू आया है, एक दिन तुझे भी बोलो जाना पड़ेगा। एक मैं कहूंगा कि तुझे जाना होगा, वो इंसान तुझे जाना होगा। तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। मैं जानूं और तू जाने, ऐसा नहीं है जो मैं जानता हूं। मैं जानूं और तू जाने, मैं जानूं और तू जाने, ये सारा जग जाने। लेकिन कैसे? पहले तुझको नहला के, फिर कंधे पे अपने उठा के ले जाना होगा, तुझे जाना होगा। मान ले कहना पाराशर का
घर आना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। राजा, दादा आए, परदादा आए, पिता आए, राजा तू आया है, तुझे भी जाना होगा। और याद रख, और आने वाले समय में आगे जो तेरी संतान आएगी उसको भी जाना होगा। और सच्चाई ये है, कुर्बानी ने कहा है, वही भेजने वाला है। कल्ले आए नानका बोलो सत्य। श्रीमती डॉक्टर हर्ष भोला जी जो आज हमारे मध्य में नहीं है, ये क्षति पूर्ति नहीं हो सकती। कहा गया है कि जुदा किसी से किसी का हबीब न हो। हाँ, धन्यवाद। दिव्य ज्योति आप देख रहे हैं, संतायक हैं। और मैं इससे पहले मैं शोक प्रस्ताव जो है आपको जो है केवल जो है नाम ही बता पाऊंगा। उससे पहले जो मर्यादा बनती है, हमारे परम आदरणीय पूज्य पंडित जी विराजमान है, मैं इनसे कहूँगा कि 10 मिनट जो है, जो 5 मिनट बाद में आप जो है अपनी कथा को जो है विराम दीजिए। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। गर्ग ने भगवान से पूछा, दोस्तों अज्ञान के द्वारा संसार में जीवों का जन्म और मरण मैंने सुन लिया। मैं सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूँ, जिससे जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो। भगवान कहते हैं, गरुण मानव जो शरीर है ये किराए रूपी मकान है। इसमें जो जीवात्मा बैठा हुआ है ये किराएदार के रूप में। इस शरीर रूपी मकान का मालिक परमात्मा है। जब परमात्मा जीवात्मा को हुक्म दे देता है कि इस मानव शरीर को खाली कर दो, तो जीवात्मा मानव शरीर को खाली करके चला जाता है। गीता में भगवान ने लिखा है, वासांस जीर्णान यथा विहाय नमार ग्रहणात नरो प्राणी तथा शरीराण विहाय जीर्णान नयान सयात नमा देहि। जैसे गृहस्थी एक पुराने घर को उखाड़ करके नया घर बना करके उसमें प्रवेश करता है, उसी प्रकार जीवात्मा के लिए जब भी शरीर पुरानी हो जाती है उस शरीर को छोड़ देता है, नए शरीर में चला जाता है। ज्ञानी जो विद्वान है वो शरीर के नष्ट हो जाने पर कभी शोक नहीं करते हैं। देवताओं के यहाँ और मनुष्य के यहाँ मृत्यु का इंतजाम नहीं। अगर इसका इंतजाम होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने पिता महाराज दशरथ को जीवित बना सकते थे। धर्मराज युधिष्ठिर और महाराज नल ये दुख से युक्त न होते। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रार्थना की, महाराज मैंने अपने पुरखों को, अपने पितरों को, अपने संबंधियों को इस महाभारत के युद्ध में मारा है, मैं उनको दोबारा जीवित देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज इसका इंतजाम नहीं। प्रातःकाल जो भोजन बनाया जाता है वो शाम तक खा पी करके खत्म कर दिया जाता है। उसी अन्न के रस से इस शरीर की पुष्टि हुई है, इसलिए इसकी औषधि है विचार और चिंतन। बड़े भाग्य मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। वेद पुराण और शास्त्र कहता है ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिली है। ऐसी मोक्ष रूपी सीढ़ी को प्राप्त करके मानव शरीर की प्राप्ति करके अपनी आत्मा का उद्धार करना मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। जीवित रहेगा मनुष्य तो अनेक प्रकार के कल्याण को देखेगा। गांव, घर, धन, पृथ्वी, शुभ अशुभ कर्म बार बार मिल जाते हैं, लेकिन जो मानव शरीर है ये बार बार मिलने वाली नहीं है।
ज्ञानी जो विद्वान है वो हमेशा शरीर की रक्षा का उपाय क्या करते हैं। शरीर तो एक ऐसी वस्तु है कि जिसके शरीर में कई प्रकार के रोग आ गए, उससे भी जाकर पूछो कि तुम अपने शरीर को छोड़ोगे, लेकिन शरीर को छोड़ने की इच्छा किसी की नहीं होती है। भगवान कहते हैं शरीर की रक्षा धर्म के लिए। धर्म से मनुष्य के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य के अंदर साधना आती है, और जब साधना पर जीव बढ़ जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पुत्र जो है गति की प्राप्ति देता है और परमात्मा सद्गति की प्राप्ति देती है। इसलिए शास्त्र कहता है मानव शरीर की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करना चाहिए, क्योंकि इसी मृत लोक में नरक की रोग की औषधि है, और वो औषधि है परमात्मा के नाम का चिंतन, परमात्मा के नाम का सुमिरन करना। इसीलिए शास्त्र कहता है कि मानव शरीर की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। कालो न ज्ञाते नाना कार्य संसार संभवी, काल संसार में उत्पन्न हुए अनेक कार्यों को नहीं देखता है। तुम्हारा क्या काम हो गया है और क्या बकाया है, मौत कभी इसकी इंतजारी नहीं करती है। इसीलिए शास्त्र कहता है मानव शरीर मोक्ष रूपी सीढ़ी है। ऐसी सुंदर मोक्ष रूपी सीढ़ी को प्राप्त करके मानव शरीर की प्राप्ति करके अपनी आत्मा का उद्धार करना मनुष्य के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि जीवित रहेगा मनुष्य तो अनेक प्रकार के कल्याण को देखेगा। इसलिए धन की और शरीर की रक्षा करता हुआ मनुष्य को पुण्य कर्मों का संचय करना चाहिए, क्योंकि यही मानव शरीर की जो है औषधि है। मानव शरीर इसीलिए मिली है कि साधना करके परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि गण इस संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं ये सब परमात्मा का अंश है। इसलिए जीवात्मा को पवित्र बनाना ये मनुष्य का कर्तव्य है, और जीवात्मा तब पवित्र होती है जब मनुष्य परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। कलयुग में परमात्मा के नाम की महिमा बताई गई है। जो नित्य निरंतर परमात्मा के नाम का उपासना करते रहते हैं वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो अपनी स्वर्गीय बहन अरुण भोला थोड़ी देर से आश्वस्त थे, परिवार बड़ा भला है। डॉक्टर हर्ष भोला जी बैठे हैं, ये बड़े कर्मकांडी आदमी हैं। पूजा पाठ में इनकी बड़ी वृत्ति है, महामृत्युंजय वगैरह सब ये पाठ करते रहते हैं, और वैसे भी भला करते हैं। हमारे शहर में 3-4 डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्ष भोला, डॉक्टर कमल बागी हॉस्पिटल, और डॉक्टर सील सेठी। ये लोग पहुंच जाए, कोई अगर नहीं देने वाला है तब भी इलाज मुक्त हो जाता है। कहते हैं कोई बात नहीं, अगर हमारे सही इलाज से तुम ठीक हो सकते हो तो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तब भी हम इलाज करेंगे। पता नहीं कितने ऑपरेशन किया है। अभी एक ब्राह्मण गया डॉक्टर बागी के यहाँ, उसके पास पैसा नहीं था, फिर भी सौरभ बागी से मिला और उन्होंने मुफ्त इलाज किया, ठीक हो गई उजरानी। तो ये परिवार बड़ा भला है, बड़े परमात्मा के भक्त हैं। सरल स्वभाव छुआछल नाही, बसहि राम तिनके मन माही। जिनका स्वभाव सरल है, परमात्मा भगवान कहते हैं मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। तो मैंने जो गरुड़ पुराण का पाठ किया, एक बेटा है कर्मण्य भोला, 2 बेटियां हैं भव्या और कर्मिष्ठा। बड़ी बेटी का विवाह हो चुका है और दामाद है राज अभय सिंह। और ये परिवार जो डॉक्टर है अरुण भोला, इनकी माता का नाम है, पिता का नाम राजेंद्र कौर, माता का नाम पुष्पा रानी। भाई 3 भाई हैं, राजेश कुमार, विकास और कपिल। सारे बड़े परमात्मा के भक्त, बड़े भला हैं। तो समय है नहीं, मैं लास्ट श्लोक पढ़ करके भोग पा करके जो हमने पूजा पाठ किया है, गरुड़ पाठ किया है, गायत्री मंत्र का पाठ करके उसका फल स्वर्गीय बहन जी के नाम पर अर्पण करूँगा।
परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में निवास स्थान दे और इस परिवार के ऊपर जो इतना बड़ा असहनीय दुख आया है, परमात्मा इनको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। बहुत से धार्मिक संस्थाओं की तरफ से, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से, राजनीतिक संस्थाओं की तरफ से बहुत से शोक प्रस्ताव आए हैं। किसी का नाम रह भी जाए तो क्षमा चाहूँगा। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फिरोजपुर पंजाब, उनकी तरफ से परिवार के लिए जो है शोक प्रस्ताव आया है। डॉक्टर ज्योति कालिया जी और डॉक्टर गुप्ता जी, उनकी ओर से जो है हमें जो है शोक प्रस्ताव मिला है। और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर, उनकी तरफ से भी जो है हमें शोक प्रस्ताव जो है प्राप्त हुआ है। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल, उनकी ओर से भी शोक प्रस्ताव आया है। शांति विद्या मंदिर की तरफ से शोक प्रस्ताव मिला है। RSD कॉलेज ट्रस्ट, उनकी तरफ से भी हमें शोक प्रस्ताव परिवार के लिए आया है। रामबाग वृद्ध सेवा आश्रम, उनकी ओर से भी हमें जो है शोक प्रस्ताव मिला है। DCM ग्रुप की तरफ से भी हमें जो है शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री सनातन धर्म सभा, उनकी ओर से भी शोक प्रस्ताव हमें जो है प्राप्त हुआ है। फिरोजपुर मिडी सिटी, उनकी तरफ से भी जो है हमें शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ये पंजाब नेशनल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी हमें जो शोक प्रस्ताव परिवार के लिए आया है। खत्री वेलफेयर सभा फिरोजपुर की ओर से भी शोक प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ है। देव कॉलेज फॉर वुमेन, उनकी ओर से भी हमें जो है शोक प्रस्ताव मिला है। और विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल जो है, उनकी ओर से भी शोक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। और उसके साथ साथ जो अभी आर्या अनाथालय फिरोजपुर, उनकी ओर से भी शोक प्रस्ताव हमें जो है प्राप्त हुआ है। दिव्य ज्योति, उनकी तरफ से भी जो है हमें शोक प्रस्ताव जो है प्राप्त हुआ है। देखिए, इस दुख की घड़ी के अंदर आप जितने भी महानुभाव आए हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, पूरे का पूरा प्रशासन भी यहाँ पर जो है बैठा हुआ है। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, इसलिए सबकी हम जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने इसकी दुख की घड़ी के अंदर आकर के धैर्य बढ़ाने की जो है कृपा की है। नसीब सिंह सिद्धू जी, उनकी ओर से भी जो है शोक प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ है। और ये एक और शोक प्रस्ताव हमें ये जो है लेकर के गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से शोक प्रस्ताव जो है परिवार के लिए प्राप्त हुआ है। तो मैं डॉक्टर हर्ष भोला जी की तरफ से, करमन्ने की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, पूरे भोला परिवार की तरफ से, उनके रिश्तेदारों की तरफ से भी मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस दुख की घड़ी में आकर के हमें धैर्य बढ़ाने की कृपा की है। हम और हमारा परिवार सदा जो है आपके आभारी रहेंगे। आइए, केवल 1-1.5 मिनट आपका और लेना है। छोटी सी आरती राम जी की कर लेते हैं।
फिर विराम। ठीक है, एक बार प्यार से कह दीजिए श्री राम जय राम। इतना कह के जो है समापन करते हैं। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी। सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी। वर्णि न जाए मनोहर जोड़ी, वर्णि न जाए मनोहर जोड़ी। महिमा अमित मोर मति थोरी, महिमा अमित मोर मति थोरी। आरती कीजिए श्री रघुवर की, आरती कीजिए श्री रघुवर की। दशरथ नंदन सीतावर की, दशरथ नंदन सीतावर की। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती। साधु संत करे दिन राती, साधु संत करे दिन राती। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शंकर गावे, राम कथा नित शंकर गावे। दशरथ नंदन सीतावर की, दशरथ नंदन सीतावर की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगले पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि। फिर भोला परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अनेजा परिवार की ओर से भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। राजा बेदी की तरफ से, करमन्ने सब बेटियों की तरफ से ओम शांति ही शांति ही। पुनः एक बार जो है मैं परिवार की तरफ से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।